So, hello everybody. We're back for another movement routine. This time I'm in the fresh air, open environment, which is an ideal place to do your movements, your workout, um, and grab fresh air. This always helps to refresh our body, our mind, our thinking, just by being here abhi thoda just in a few seconds, I think over a minute, I'm already feeling quite calm. The first thing to do here is just start moving your hands. It can be in any direction for now. You can walk slowly. For those of you who have gardens or you have parks around you, walk around, try walking looking on the garden. So when you look down, it's you feel something. It's quite a raw, natural feeling. And what we're trying to do here is doing some mindfulness. We call it mindfulness walk, nature walk. What I'm doing now is I'm moving my hand over the grass. I'm feeling quite tinglish, but it's quite natural and raw. So let's do some basic stretches. You can pause, you can walk again. As you walk, take a deep breath in through your nose, out through your mouth. Breathe in, hold for 3 seconds. Exhale. Keep moving. Move your arms in a circular way, round and round. I have to show you this view. This is a wonderful view. I've got two little pets here at this place, so I'll give you a very good view. How about this? If you could see them. Okay, so keep moving. Over there, you see that? Beautiful peacock here. They live here. This is a very good exercise where you hold your foot up, stretch up high, let your knee flex, then the other one. Okay. Stretch your knee side to side. Hand down. Stay on this position. In yoga, we call it the downward dog. It's an excellent position for the blood flow, for the blood to flow all across your body. And then you roll up, rise up. Try doing this again. So go down, or like this, stay here for 10 seconds.
then back up. Do a little soft high jumps. Let's move our hands. It's an excellent weather here today. I don't really see this weather in October here, but it's windy, it's dry, and it's cloudy, surprisingly. Well, this adds to my mindfulness practice for now. Next अब हम ये करेंगे, I'm going to use Urdu also. Next मैं कहूँगा जो बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और अपने हाथों को ढीला छोड़ देंगे. So when you release, you keep, they will tap also. Make them tap on your body like the way they're tapping my body. एक हाथ मेरे साइड पे टैप होता है, एक बैक पे. It's a very stimulating nervous system activity. ये हमारा जो पूरा नर्व सिस्टम होता है, स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन है, डिफरेंट जो नर्व्स होती हैं, जो ये नर्व्स का काम ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो ले होती है, जिसे मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये नर्व्स के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जाती है. आँखों की रिसेप्टर्स होते हैं, कानों के होते हैं, बॉडी में स्पाइन के हैं, पूरी बॉडी में ये नर्व्स होती हैं, ब्लड भी इसके थ्रू पास थ्रू होता है. सो दिस रियली हेल्प्स अस इन मेकिंग, ये पूरी बॉडी को एक्टिव करता है ये मूवमेंट. अब आप जो देख रहे हैं ये कि मैं पैर को लूज छोड़ा हुआ और किक कर रहा हूँ, थोड़ा सा झटका दे रहा हूँ. डू दैट विथ योर हैंड ऑल्सो. समटाइम्स ये एनर्जी हमारी बॉडी में इतनी टाइट हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, तो उस स्ट्रेस को मैं झड़क रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ. जो गुस्सा आए किसी को, then there is this thing called as knocking. जब आप ट्राई करेंगे तो कुछ होगा, मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता, बस हम सब का एक अलग लेवल होता है एनर्जीज का. आप लोग जितना ये करेंगे वो इतना यूज्ड टू होंगे. साइंटिफिकली स्पीकिंग, दिस ऑल्सो लूजन्स अप द मसल सेल्स. मसल सेल्स, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, रिपल इफेक्ट आता है. सेल्यूल सेल्स, जैसे हमारे सेल्स, बहुत सारे सेल्स मसल को बनाते हैं. जब मैं टैप और नॉक कर रहा हूँ तो मसल के अंदर की जितनी भी लेयर्स हैं सेल्स की, वो मूव करती हैं. जब वो मूव करती हैं तो एनर्जी, इंफॉर्मेशन, ब्लड ऑल्सो मूव्स. तो जो स्टक एनर्जीज होती हैं वो सब वाइब्रेट करती हैं एंड वो स्टकनेस कम हो जाती है, वो इधर उधर फैलने लगती हैं. जैसे कि हम अगर मसाज करते हैं तो क्या होता है मसाज में, जब लोगों के नॉट्स बन जाते हैं उसको हम आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट करते हैं, ख़त्म करते हैं. इसी तरीके से हमारी बॉडी स्टार्ट्स ओपनिंग, डिफरेंट पोर्स ओपन हो जाते हैं. So now we'll do some more movements. So we're going to do some more movements now, for reflexivity, for body posture, for activation, muscle activation, tension release. This can be called as mindful movements. Energy release movements. So let's start with stomping. टैप करें, स्टॉप करें, अपने फीट को स्टैम्प कीजिए.
shake your hands. कि हम बाहर खुली फिज़ा में तो थोड़ा सा ब्रीदिंग को भी करते रहें। आप सांस लीजिए नाक के थ्रू और माउथ से बाहर निकालिए। जब सांस लेंगे गहरी, नाक से गहरी सांस लेंगे 3 सेकंड के लिए लीजिए और 5 सेकंड के बाद मतलब 3 सेकंड को होल्ड कीजिए और फिर 4 सेकंड के बाद तक निकालिए। सो लेट्स ब्रीद इन, होल्ड और अब रिलीज। गहरी सांस लीजिए, होल्ड, रिलीज। गहरी सांस लीजिए, ट्राई करते हैं कि पेट के थ्रू लें। जब आप लेंगे तो आपका जो एब्डोमेन है, अंदर डायफ्राम होता है, उसको मूव करेंगे हम। तो हम गौर से देखिएगा। इस वक्त मेरा डायफ्राम बाहर को निकलता है, फिर अंदर जाता है। इसे कहते हैं डायफ्रामिक ब्रीदिंग। ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो डाइजेशन, जो रेस्ट को एक्टिव करता है। जब हमें बहुत बेचैनी होती है हमें, या हमें कोई स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है, तो बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, belly breathing आप कहो तो mindful meditation. So just a small technique, it helps especially when you are in an open space. I saw a peacock here, so I'm going to do the peacock wings breathing, which is breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Now move and flow. Breathe in, breathe out. Breathe in as your hands go up. Breathe out as they go down. Breathe in and out. This is also part of very basics in Qigong. Qigong एक ancient Chinese meditation है जिसमें हम movement के through we activate our Qi, which is also called as the energy inside. तो उस Qi, उस energy से ये होता है कि हमारे सारे senses open up हो जाते हैं, हमारी body gets more activated, हमारी thought process तेज़ हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं एंग्जाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, समझ नहीं आ रहा वो क्या डिसीजन लें, बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, तो हम ची गोंग टाई ची मेडिटेशन रेकमेंड करते हैं। आई एम नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड विद ची गोंग, बट बेसिक ट्रेनिंग आई डू हैव, एंड आई वुड ऑल्सो रेकमेंड यू टू गो ऑन यूट्यूब, लुक एट ची गोंग डिफरेंट वेज। The main part about any movement here is कि कोई भी movement जो आप कर रहे हैं, जब आपको अगर उसमें उस movement को आप धीरे से करें, आराम से करें, unless कि आपको energy release करनी है, for that हम shake करते हैं, झटका देते हैं, jerk कर रहे हैं। Otherwise you do it gently, and if you can master the gentle movements, then I would recommend you to breathe along. So breathe in, breathe out. या जेंटल कर लें आप, डीप ब्रीदिंग भी ना करें। डीप ब्रीदिंग हम करते हैं फॉर स्टैंडिंग स्टिल मूवमेंट्स, फॉर मूवमेंट्स विच आर ऑन द गो, डू जेंटल ब्रीदिंग। सो ऐसे बहुत से लोग वॉक करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, बच्चों को बेसिक ब्रीदिंग, लॉन है आपके पास, पार्क जा रहे हैं,
सो सांस लीजिए, नाक के थ्रू जेंटली बाहर निकालिए। वॉक करते हुए आप ये करें, ज़मीन को देखें, आसमान को देखें। जब एक हवा का झोंका आए, यू नो व्हेन इट गेट्स विंडी, तो आप ब्रीद इन करें उस वक्त, एंड देन क्लोज योर आइज, यू फील समथिंग। उस टाइम पे एक बहुत मैजिकल फीलिंग आएगी। ट्राई इट एंड यू विल बिलीव इट। Okay, I'll do some windmills. वो आपके ऊपर है कि आप इस मूवमेंट को 10 दफ़ा करें, 20 दफ़ा करें, 2 मिनट के लिए करें। मैं चलते हुए 1 मिनट में 3-4 मूवमेंट्स कर लूँगा। एंड क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मेरी बॉडी में वो फीलिंग्स आती हैं। आई कैन फील, मुझे वो ओपनिंग एनर्जी महसूस होती है। और ये तभी होगी जब आप डेली इसको करेंगे। वरना तो ये होता है कि एक्सरसाइज या कोई भी मूवमेंट मेडिटेशन होगा, आपको रिपीटेटिव मूवमेंट्स करने पड़ेंगे, तकरीबन 30 सेकंड्स तक, 20 सेकंड तक। बट आप अपने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम डूइंग दिस, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके साथ मैं पॉज करूँगा आफ्टर 8 सेकंड्स, ब्रीदिंग करूँगा और फिर मैं यूँ कर लूँगा। अगर मुझे टेंशन महसूस हो रहा है मेरी गर्दन पे, तो मैं गर्दन को या फिर सर को राउंड कर लूँगा, शोल्डर को। अगर आपका गोल ये है to find out if there is tension in any part of your body, you want a release, you want your muscles to be relaxed, then remember the secret is you start with that part of the body. But sorry, you don't start with that part of the body, you take a deep breath in 3 times and then you work out that body. So you make that body part move. If you're feeling, यहाँ पे बहुत से लोगों को अक्सर या तो बैठ के, या जो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स, किड्स, या काम कर रहे हैं और दी ऑफिस, या आप वैसे ही बहुत कुछ सोच रहे हैं, उस सोच की वजह से वो सारा स्ट्रेस यहाँ पे बेर होता है, दिस एरिया। सो जस्ट फॉर स्ट्रेस रिलीज, मसल मूवमेंट्स, एनर्जी, स्टार्ट मूविंग इट। ये होता है। इससे 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि काम करता है ये, बिकॉज ये अगर एनर्जी या स्ट्रेस आपको बैठा तो वो किसी थॉट से आया है। अपनी सोच के ऊपर काम करना पड़ता है। अब काम कैसे होगा कि अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है, कोई सोच ऐसी है जो एड्रेस ही तब होगी जब आप किसी से वो बात कहेंगे या शेयर करेंगे। सो आई वुड रेकमेंड कि आप कहें, किसी उस शख्स से करें जो आपको समझते हैं, और उनकी बात करें, उनसे आप पूरी बात करें, उनसे उनकी राय लें, आप समझें वो क्या कह रहे हैं, तो उससे बड़ा बोझ हल्का होता है। अलॉन्ग साइड मूवमेंट तो है ही है, लेकिन आप अभी फील करेंगे 2 सेकंड के लिए सही लग रहा है कुछ, 1 घंटे बाद फिर हो जाएगा, बिकॉज वो सोच आपकी एनर्जी को दोबारा से जन्म देगी और वो फिर आपके बॉडी पार्ट सोर होंगे, नम होंगे, एंड आपको फिर से वो फीलिंग्स आएंगी कि सो इट्स बेटर टू स्पीक। सो एज अ काउंसलर, एज अ थेरेपिस्ट, I mean, I wouldn't say you to talk to me all the time. You can go to anybody. It's just like, जैसे आपको वायरल होता है, कोई ज़्यादा हेडेक्स हो रहे हैं, माइग्रेन्स हो रहे हैं, just for checkup you go to doctors. I would recommend, in fact, अब तो दुनिया भर में बहुत recommendations होती हैं to go see a counselor, a psychotherapist, a psychologist, because वहाँ पे रह के फिर आपकी काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो निकलती हैं, जो स्टक पैटर्न्स हैं, एनर्जीज़ हैं, यू विल नॉट इवन फील। आप ये कहेंगे सेशन के बाद मुझे बड़ा लाइट फील हो रहा है, बहुत से लोग ये कहते हैं। वो इसलिए होता है बिकॉज आपकी बातें जो बाहर आती हैं अंदर की छुपी हुई, वो बातें मसल्स को टाइट करती हैं। आपकी एनर्जीज़, जैसे ब्लड फ्लो है, लोग सवाल करें एनर्जी मैं क्यों बोलो, व्हाट इज़ दिस एनर्जी। मेरे अंडरस्टैंडिंग में एनर्जी, मेरे रिसर्च अंडरस्टैंडिंग में है, एनर्जी इज़ ऑल दैट आई रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे सूरज की रोशनी से मैं देख पा रहा हूँ, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, फिर मेरे जो थॉट्स हैं दिमाग में, वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कभी सीखी या मुझे सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, मैं उसको एनर्जी कहूँगा, क्योंकि वो केमिकल, इलेक्ट्रिकल और एनर्जीज़ होती हैं, एंड वो हमारे अंदर ट्रैवल करती हैं, वो हम सारा वक्त हम सराउंड होते हैं। सो दैट ऑल्सो बिकम्स
वेरी स्ट्रॉन्ग इन सच अ वे कि हम बड़े स्टिफ और रिजिड हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं. लोग कहते हैं वाई यू हैव सच अ रिजिड माइंड. इट्स बिकॉज वी आर नॉट दैट ओपन माइंडेड येट. ओपन माइंडेड होने के लिए हमें बहुत सारी राय लेनी होती हैं, समझना होता है. हम अपनी बात पे लगे रहते हैं. So all of those things gets processed, uncovered, unfolded in a therapy session. So it's very important कि आप ये चीज़ें भी करें साथ साथ, alongside jogging, moving, listening to songs, yoga, swimming. Those are body-based oriented methods. But these things, along with therapy sessions, counseling, or talking to a friend, talking to your loved ones, आप घर वालों से बात करें, फिर आप देखिएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है विद मूवमेंट्स along with it. Let's take a deep breath in and out. So breathe in as you stretch and out. It gives you a good relaxing feeling. So this was just for you people, a very basic thing that you can do in your own way. आप अपने तरीके से करें, अपने स्टाइल से करें, जो आपको सही लगता है वो करें, लेकिन ब्रीदिंग के एलिमेंट को साथ लेके चलें. सांस लें, सांस रिलीज़ करें. रिमेंबर, बात करना बहुत अहम है. कम्युनिकेशन होगी तो अंदर से जो एक बंद जैसी कैफियत आती है ना, वो निकलेगी, फ्रस्ट्रेशन निकलेगी. सो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे वेरी सून. आई विल कीप कमिंग विद दिस एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी होपफुली. सो लेट्स से what's next. You can recommend me what you want to know, what you want to understand in terms of body physiology, neuropsychology, movement psychology. I will keep coming up with things. Have a family day out in the park, jog, run, jump, be a little child as you were once. There is no harm in it. There's always a blessing in it.